اسلام علیکم پیارے ناظرین، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ حصہ اول۔ پیارے ناظرین، یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ مرنفتاح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتاح بھی لکھا ہے، اور وہ والد رمسیس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطعہ زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ اریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پہلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فراعنہ خاندانوں نے مصر پر یہ کے بعد دیگر حکومت کی۔ سب سے اخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ پیارے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اور نسب مبارک یوں ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہز بن آزر بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اب علیہ السلام کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ پاک نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیاتی طیبہ کے واقعات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ۔ جبکہ اب علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک اگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہ کو جلا ڈالا۔ لیکن بنی اسرائیل کو انچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی جس پر انہوں نے جواب دیا: بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ ڈور ہوئے گی۔ یہ خبر فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی۔ لہذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکرمند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن اقدام اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال ایمان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ اسکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ پاک نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا۔ چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن اب علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔
जबकि बाज दीगर मुफस्सिरीन ने दूध पलाने की मद्दत 3 माह बयान की है। संदूक दरिया में बहता हुआ फिरौन के महल के पास पहुंच गया जो लबे दरिया था। फिरौन के नौकरों ने संदूक उठाया और फिरौन की बीवी उसिया की खिदमत में पेश कर दिया। उसिया बे औलाद थीं। तब उन्होंने जब संदूक में एक हसीन और जमील चांद जैसे बच्चे को लीटे देखा तो फरीफ्ता हो गए। बे अख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फिरौन के पास ले गए और बोले, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल न करना, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम उसे अपना बेटा बना लें। एहलिया की शदीद ख्वाहिश के पेश नज़र फिरौन ने बादल न ख्वास्ता परवरिश की इजाज़त दे दी। उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उन्हें दुनिया के सुपुर्द तो कर दिया था, लेकिन वो बेकरार थीं। चनाचे उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम बनती उमरान को भाई की खबरगिरी के लिए भेजा। मरियम दूर से संदूक को देखते हुए दरिया के किनारे चलती हुई फिरौन के महल तक पहुंच गई, जहां फिरौन की बीवी दीगर औरतों के साथ बड़ी देर से मासूम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिशों में मसरूफ थीं, लेकिन कोई अया उन्हें दूध पिलाने और चुप करवाने में कामयाब नहीं हो रही थी। कुरान पाक में इरशाद है, और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता जा रहा था, भूखे बच्चे की बेताबी देखकर आसिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम दरवाजे पर खड़ी ये सब मंजर देख रही थीं। बिल आखिर बोल पड़े, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं कि जो तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और उसकी खैर ख्वाही से परवरिश करें। फिरौन की बीवी की ख्वाहिश पर मरियम जल्दी से जाकर अपनी वालदा को महल में ले आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर अपनी वालदा की छाती से लगकर दूध पी लिया। यूं अल्लाह ने अप अलैहिस्सलाम की वालदा से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। कुरान पाक में इरशाद है, तो हमने उनको उनकी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से इस्तदा की कि वो महल ही में रहने लगें और इस बच्चे की परवरिश करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरे शौहर और बच्चे परेशान होंगे। उस पर आसिया बच्चा उन्हें देने पर मजबूर हो गए। फिर उसने बच्चे के लिए वजीफा भी मुकर्रर कर दिया। यूं अल्लाह की शान देखिए कि जिस बच्चे के खौफ से फिरौन ने हजारों बच्चे ज़बह करवा दिए, वो बच्चे फिरौन ही की ज़ेर निगरानी और सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में परवान चढ़ने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रज़ात की उम्र तक अपनी वालदा के पास ही परवरिश पाते रहे। फिर जब अब का दूध छिड़वाया गया तो वालदा ने अप अलैहिस्सलाम को दोबारा फिरौन की बैवी के हवाले कर दिया। एक रोज का जिक्र है कि आसिया और फिरौन अपने महल में बैठे थे। आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाकर फिरौन की गोद में बिठा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की गोद में बैठते ही उसकी दाढ़ी पकड़ ली और फिर उसके मुना पर तमांचा रसीद कर दिया। बाद रवायात में है कि उनके हाथ में एक छुरी थी जिससे वो खेल रहे थे। वो फिरौन के सर पर दे मारी। फिरौन गुस्से में अगबगूला हो गया। वो काहिनों की बच्चा पैदा होने की पेशगोई पर पहले ही बड़ा फिक्रमंद था। कहने लगा, मुझे लगता है कि यही वो बच्चा है, और उसने बच्चे के कत्ल का हुक्म दे दिया। आसिया ये देखकर सख्त परेशान हो गए और बोले, ये मासूम बच्चा है, इसे किसी चीज की अक्ल नहीं है, इसने ऐसा नादानी में किया है। बादशाह सख्त गुस्से में था और उसे बच्चे से खौफ होने लगा था। बोला, मैं उसे कत्ल करके रहूंगा। आसिया ने कहा, अच्छा अब जरा तवक्कुफ करें, उसका इम्तिहान ले लेते हैं, अभी मालूम हो जाएगा कि उसने ये हरकत नादानी में की है या जानबूझकर। ये कहकर उन्होंने 2 तश्यत मंगवाए, एक में दुहकते अंगारे और दूसरे में सुर्ख याकूत। फिर फिरौन से बोले को देखें, अगर इस बच्चे में अक्ल हुई तो याकूत उठाएगा, वरना अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। दोनों तिशत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए गए। अपने याकूत की जानिब हाथ बढ़ाए, लेकिन हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन उनके हाथ को अंगारों की तरफ बढ़ा दिया। अप अलैहिस्सलाम ने एक अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया, जिससे जबान जल गई और अप अलैहिस्सलाम रोने लगे। फिरौन ने जब ये देखा तो खामोश हो गया और अपना फैसला तब्दील कर दिया। जबान के जल जाने ही की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में लुकंत पैदा हो गई थी। कुरान पाक में अरशाद है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हुक्मत और इल्म अनायत किया, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में आसिया की ज़ेर निगरानी परवरिश पाते हुए जवान हो गए। अब अलैहिस्सलाम नहायत खूबसूरत, ताकतवर, समझदार और दाना इंसान थे और मिस्र में फिरौन के लिए पालक बेटे के तौर पर मशहूर थे। इसी वजह से उनका रूब और दबदबा भी बहुत था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि वो फिरौनी, किब्ती,
नहीं बल्कि इसराइली हैं। लिहाजा जब फिरौन, उसके हवारियों और सिपाह की जानिब से इसराइलियों पर जुल्म ढाए जाते तो अब अलैहिस्सलाम को बेहद दुख होता। अक्सर इस जुल्म के खिलाफ आवाज भी बुलंद करते और बेकसूर इसराइलियों की मदद भी करते। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महल से निकलकर शहर का गश्त कर रहे थे। आपने देखा कि एक किप्ती किसी इसराइली को बुरी तरह जद कोप कर रिया है। यह मंजर देखकर अप रुक गए। इसराइली ने जब आपको देखा तो मदद के लिए पुकार उठा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों के करीब गए और किप्ती को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जुल्म से बाज न आया। अब अलैहिस्सलाम काफी देर तक इसराइली को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किप्ती किसी तौर पर उसे छोड़ने के लिए तैयार न था। आखिरकार अलैहिस्सलाम से जब्त न हो सका और उसे एक मुक्का रसीद कर दिया, जिससे वो मर गया। हालांकि अलैहिस्सलाम की नीयत उसे मारने की न थी। किप्ती के कत्ल की खबर फिरौन समेत पूरे मिस्र में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को कातिल का पता न था और सिपाह कातिल की तलाश में सरगर्दा थी। दूसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर गश्त पर निकले। ख्याल था कि किप्ती के कत्ल के रद्दी अमल का अंदाजा हो सके। अभी कुछ ही दूर गए थे कि देखा वही इसराइली किसी दूसरे किप्ती से झगड़ा कर रहा है। उसने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फिर मदद के लिए पुकारा। अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक तो ही सरीह गमराह शख्स है, और फिर किप्ती को छुड़वाने के लिए आगे बढ़े। इसराइली ने समझा कि ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और आज मुझे मार डालेंगे, तो वो फौरन चिल्ला उठा, ए मूसा, जिस तरह तुमने कुल एक किप्ती को मारा था, आज मुझे कत्ल करना चाहते हो। किप्ती ने जब ये सुना तो फौरन फिरौन को खबर भिजवा दी और फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। फिरौन के हवारियों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों किप्ती के कत्ल का इल्म हुआ तो उन्होंने अब के कत्ल का फैसला कर लिया। ताहिम वहां मौजूद अलैहिस्सलाम के एक हमदर्द ने आकर अलैहिस्सलाम को उसकी इत्तला कर दी। कुरान पाक में अरशाद है, और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, शहर के रईस तुम्हारे कत्ल का मशूरा कर रहे हैं, बस तुम जल्दी से यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल खड़े हुए, कहने लगे, आए परवरदगार, मुझे जालिमों के गरवा से बचा ले। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई इल्म न था कि कहां जाना है, क्योंकि मिस्र छोड़ने का यह हादसा बिल्कुल अचानक पेश आया था। चनाचे अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते को घोड़े पर भेजा जिसने रास्ते की निशानदही की। अलैहिस्सलाम कई रोज की मसाफत तय करके अर्ज़ मदीन पहुंचे और शहर के किनारे एक किनवे के करीब दरख्त के साये में बैठ गए। उस वक्त किनवे पर जानवरों को पानी पिलाने वालों की भीड़ थी। अलैहिस्सलाम ने देखा कि दरख्त के पास दो लड़कियां बहुत देर से अपने जानवर लिए खड़ी हैं और उनकी बारी नहीं होती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे घर कोई जवान नहीं है, वालिद बहुत ज़ईफ हैं। जब सब लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाएंगे तो फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर खड़े हो गए। अलैहिस्सलाम जवान भी थे और ताकतवर भी। अलैहिस्सलाम ने लड़कियों के मवेशियों को पकड़ा और लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए कुनवे तक पहुंच गए। कन्वी से पानी निकालकर सब मवेशियों को सीर होकर पलाया और वापस हो गए। लड़कियों ने अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चली गईं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियां थीं। जब वे वक्त से पहले घर पहुंच गईं तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को ताजुब हुआ और जल्द उन्हें की वजह दरियाफ्त की, जिस पर लड़कियों ने पूरा वाकया बताया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खुश हुए और फरमाया, जायो और अल्लाह के उस नेक अजनबी बंदे को मेरे पास ले आयो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबा सफर तय करके मिस्र से मदीन पहुंचे थे। कुछ ज़्यादा राह भी साथ न था, जबकि सफर की थिकन और भौक से निढाल थे। कुरान पाक में अरशाद है, थोड़ी देर में उनमें से एक औरत शर्म व हया से चलती हुई उनकी तरफ आई और कहने लगी, तुम्हें मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया था उसकी उजरत दें। जब वो उन हजरत शुएब के पास आए और उनसे अपना सारा हाल बयान किया तो उन्होंने कहा, अब कुछ खौफ न करो, तुमने जालिम कौम से नजात पाली है। एक लड़की बोली, अब्बा जान, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतर नौकर जो अब रखें वो है जो तवाना और ईमानदार हो। उन्होंने मूसा से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी दो बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, उस शर्त पर कि तुम 8 बरस मेरी खदमत करो और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से ओसन है और मैं तुम पर तकलीफ डालना नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शर्त को मंजूर कर लिया। लिहाजा अब अलैहिस्सलाम का हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक साहबजादी से निकाह हो गया। जब 10 साल मुकम्मल हो गए
तो अब अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा और बहन भाइयों से मिलने के लिए मिस्र जाने का कस्द फरमाया और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से रुखसत चाही। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी के साथ कुछ माल मवेशी और ज़ादी राह देकर रुखसत किया। रास्ते में मुल्क की शाम के बादशाहों से खतरा था, उसलिए आम रास्ता छोड़कर गैर मारूफ रास्ता इख्तियार किया। सर्दी का मौसम था और अहलिया के यहाँ विलादत करीब थी। फिर ये कि रास्ते से भटक कर तौर पहाड़ की मगरबी और दाहिनी समझ जा निकले। अंधेरी रात थी और बर्फानी सर्दी। इस हाल में अहलिया को दर्दीजा शुरू हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर्दी से बचाव के लिए पत्थर से अग जलाना चाही, लेकिन पत्थरों के रगड़ने से अग रोशन न हो सकी। परेशानी के आलम में इधर उधर नजरें दौड़ाएं तो दूर कोहे तौर पर एक नजर आई। अहलिया से फरमाया, मैंने वहां अग देखी है, वहां जाकर तुम्हारे लिए अग भी लाता हूं और मुमकिन है कि कोई बंदा बशर भी मिल जाए जो रास्ता बता दे।